Welcome students. This topic is for BSc Part 3 students of Botany, taken from Paper 1 Unit 2. Today we will be discussing about the light dependent reactions of photosynthesis. Students, आज हम photosynthesis के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. But let us summarize our earlier lecture on photosynthesis. Students, हमने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बारे में जाना था. फोटोसिंथेसिस में फोटोनिक या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं. इसलिए हम इस मैकेनिज्म को कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन भी कहते हैं. नाउ हमारा फोकस फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो रिएक्शंस होते हैं स्टडी करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल्स के द्वारा होते हैं और क्लोरोफिल्स में एक स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें की लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होके एक स्पेशल ट्रैप सेंटर या रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र होती है रेजोनेंस के द्वारा, जिससे कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाता है. फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑफ एसिमेट्री पावर्स वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. इमर्शन तथा उनके सहयोगियों द्वारा किए गए प्रयोगों से हमें 2 पिगमेंट सिस्टम के अस्तित्व के बारे में पता चला. 2 फोटो सिस्टम्स जो प्रेजेंट रहते हैं प्लांट्स में वो हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. Now the light reaction or the Hill's reaction. It occurs in the grana of the chloroplast, also called Hill's reaction, because Hill in 1937 first proved that isolated chlorophylls release oxygen from water in the presence of light and a suitable hydrogen acceptor. 2 pigment systems. The photosystem 1. It consists of 200 chlorophylls, 50 carotenoids, a molecule of P700, cytochrome F, 1 plastocyanine, 2 cytochrome B563, FRS, ferredoxin reducing substance, 1 or 2 membrane bound ferredoxin molecules. It is rich in chlorophyll A, iron and copper. Photosystem 1 controls the process of producing a strong reductant to reduce NADP into NADPH2. Photosystem 2. It is a complex which consists of 200 chlorophylls, 50 carotenoids, a molecule of 680, a primary electron acceptor Q, a plastoquinone, 4 manganese molecules bound to 1 or 2 proteins, 2 cytochrome B559, 1 cytochrome B6 and chloride. Photosystem 2 is concerned with the generation of strong oxidant and weak reduction coupled with the release of oxygen. तो ये 2 फोटो सिस्टम्स जो हैं इनके द्वारा लाइट फोटोन्स के रूप में
एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन होता है लाइट रिएक्शन में वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर? It is the splitting of water by light into H plus ions and electrons. It takes place in the photosystem 2 of chloroplast. When pigment system 2 is active, it receives light. The water molecules split into OH and H plus ions. The OH ions unite to form some water molecules again and release oxygen and electrons. The electron transport and photophosphorylation. नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोरोफिल्स and the mechanism is called as the electron transport. It takes place through a series of electron carriers in the thylakoid membrane of chloroplast, resulting into the synthesis of NADPH2 and ATP. In this process, NADP is reduced to NADPH2 and ATP is formed from ADP and inorganic phosphate. The electron transport is of two types: cyclic electron transport and non-cyclic electron transport. साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिसको कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का अगर हम डायग्राम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें यह केवल फोटो सिस्टम 1 की सहायता से संपन्न होता है। एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है सनलाइट से, ये हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब होती है, जो कि फाइनली P700 में ट्रांसफ़र रेजोनेंस के द्वारा की जाती है और P700 ऊर्जा शोषित कर एक्साइटेड हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है। इसके पश्चात यह इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाता है, जिससे यह पॉजिटिवली चार्ज्ड तथा रंगहीन हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन कहाँ रिसीव होता है? एक इलेक्ट्रॉन कैरियर X द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन अपनी डाउनहिल जर्नी आरंभ करता है और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने P700 पर चले जाता है और इलेक्ट्रॉन B6 और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F में ये इलेक्ट्रॉन ATP प्रोड्यूस करता है यूजिंग ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर आ जाता है P700 पे, इसलिए हम इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इसका क्या महत्व है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का? इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल अणु से एक्साइट होता है और एक चक्र के रूप में वापस अपने स्थान पर पहुंच जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें साइक्लिक प्रोसेस में डार्क रिएक्शन के लिए यूज़ होने वाला ATP मॉलिक्यूल बनता है, जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं बनता। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम देख रहे हैं, ये फोटो सिस्टम 1 तथा फोटो सिस्टम 2 की सहायता से होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP तथा NADPH2 का निर्माण होता है। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 में जो एनर्जी स्टोर होती है, ये फाइनली P680 या ट्रैप सेंटर पर पहुंचती है।
जिसके फलस्वरूप इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और यह इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F में डाउनहिल जर्नी करता हुआ ये प्लास्टोसाइनिन से ग्रहण करता है और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है P700 में चले जाता है। तो हम कह सकते हैं जो लिंक है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, प्लास्टोसाइनिन इज द लिंक बिटवीन द साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है NADP में चले जाता है। इस प्रकार P680 जो इलेक्ट्रॉन देता है वह इसको वापस नहीं मिलता। इस कारण P680 एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर की आवश्यकता होती है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर हमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा मिलता है। इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलता है? जब वाटर का फोटोलिसिस होता है। जल, प्रकाश, क्लोराइड आयंस, मैग्नीज तथा कैटोनॉइड्स की उपस्थिति में डिकम्पोज होकर प्रोटॉन्स तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। जल का प्रकाश में डिकम्पोजिशन को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रिप्लेस हो जाता है, चले जाता है P680 में, और जो H+ आयंस हैं वो NADP द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्शन से इलेक्ट्रॉन मिलता है और NADP कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है? Photophosphorilation is the synthesis of ATP by ATP synthase with the influence of light in chloroplast during electron transport. It is different from oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation respiration में जब ATP माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निर्माण होता है तो उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और जब ATP लाइट में क्लोरोप्लास्ट द्वारा निर्माण होता है तो उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? अब पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का महत्व क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का वह सीक्वेंस है जिसमें हमें NADP रिड्यूस होता है और इसमें हमें वाटर का ऑक्सीडेशन फोटोलिसिस होता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. Cyclic photophosphorylation is found in bundle sheet of C4 plants, and non-cyclic photophosphorylation is seen in all the photosynthetic plants. Cyclic photophosphorylation takes place in photosystem 1. Non-cyclic photophosphorylation takes place in both photosystem 1 and photosystem 2. Electrons cycle around photosystem 1 in cyclic photophosphorylation and electrons move in a zigzag manner in in non-cyclic photophosphorylation. Electrons move from photosystem 1 and return back to the photosystem 1 in cyclic photophosphorylation, and in non-cyclic photophosphorylation, electrons move from photosystem 2 to photosystem 1 and they do not return back
to photosystem 2. In photosystem, in cyclic photophosphorylation, the electrons are drained into photosystem 1 to proceed the next round of cyclic electron transport. In non-cyclic photophosphorylation, electrons are drained into NADPH2, which is used for dark reaction. Cyclic photophosphorylation does not evolve oxygen, and oxygen evolution takes place in non-cyclic photophosphorylation. So these are the differences between the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Last में students, light reaction का क्या significance है? What is the significance of light reaction? During the light reaction, assimilatory powers NADPH2 and ATP are synthesized, which are used in the dark reaction. Here in light reaction, the radiant energy is converted into chemical energy. Photolysis of water occurs in light reaction. The H plus ions released from water are used for the synthesis of NADPH2, and oxygen is released into the atmosphere. The oxygen produced during light reaction maintains equilibrium of oxygen in the atmosphere. So this is all about the light reactions of photosynthesis, and in our next lecture we will continue with the mechanism of photosynthesis and focus on the dark reaction of photosynthesis, which is the Calvin cycle. Thank you.